वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रेम से फिजिक्स में। आज हम करेंगे 12th क्लास में एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमें? फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि व्हेन द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, फोर्स पूछा है दो स्मॉल चार्ज के बीच में। कौन कौन से चार्ज हैं? 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ coulombs, or distance is 30 centimeter. First charge is A, other charge is B, and the distance between them is 30 centimeter. First had the value is 2 × 10⁻⁷ coulombs, and other had the 3 × 10⁻⁷ coulombs. So as we know that the Coulomb's force equation is equal to F is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught divided by R square. You have to just put the value in this formula and you get your answer. Here it is that 1 by 4 pi epsilon naught had the value which is 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. Okay, so as I will put the value, I will get it 9 × 10⁹ into 2 × 10⁻⁷ into 3 × 10⁻⁷ divided by 0.3 whole of square. When we convert 30 centimeter in meters, it will become 0.3 meters. So as I solve this equation, I will get the answer which is 6 × 10⁻³ newtons. Okay, you will get your answer, and if you want the PDF, you will get it PDF at our Telegram channel, which is also from name as Prem Se Physics. Okay, I will give you the link. Okay, so next question is, I had to find electrostatic force on a small sphere charge. Sphere में क्या चार्ज है? 0.4 microcoulombs. So micro stands for 10⁻⁻⁶. After this, the another small sphere had a charge 0.8 microcoulombs, but in negative sign. Okay, the electrostatic force क्या है? 0.2 newtons. Then we had to find what is the distance between two sphere. We had to find the distance. Okay, and what is the force of the second sphere to the फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के ऊपर क्या फोर्स लगा है, दूसरा हम ये फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है, एक तो पता है Q1, जैसा कि हम देख रखे हैं, फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन्स. आफ्टर दिस चार्ज ऑन दिस स्फीयर, चार्ज क्या है? Q1 is equal to 0.4 microcoulombs. When we convert it into coulombs, it will become 0.4 × 10⁻⁻⁶ coulombs. Okay, similarly the second charge is minus 0.8 microcoulomb. When we convert it in coulombs, it will becomes, what will it become? It will become minus 0.8 multiplied 10⁻⁻⁶ coulombs. Okay, as we know the electrostatic force है, the formula F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Okay, so you know the K value is 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. This is the K value, which is also known as 1 by 4 pi epsilon. Okay, so as from this equation, the formula, okay, we will put the value. First we had to find the value of R. R square will become Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught F. Okay, we had all the value. We had the value of F, we had the value of Q1, we had the value of Q2. जैसे इनको सॉल्व करेंगे हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, which is R square is equal to 144 multiplied 10⁻⁻⁴. जैसे इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लगा के, तो R की वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 0.12 मीटर. क्या आएगी? 0.12 मीटर. ये क्या है? डिस्टेंस है. बोथ ऑफ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट क्यों करेंगे? 0.4 क्या है? पॉजिटिव. 0.8 क्या है? नेगेटिव. सो दे अट्रैक्ट with the same force. Therefore the force on second sphere due to first is 0.2 newtons.
तो फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है, अगर एक उसको खींच रहा है दूसरा भी उसको उसी फोर्स से खींचेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज 1.3. 1.3 says that check the ratio of K E square G M E M P is dimensionless. फर्स्ट हमें चेक करना है ये डायमेंशनलेस है, उसके बाद में टेबल देखनी है फिजिकल कांस्टेंट्स की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले ये आया कहां से, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है के ई स्क्वायर डिवाइड्स बाय जी एम ई और एम पी। From 11th class, you know that the gravitational force is equal to G m1 m2 divided by r square. Okay. From the 12th class, you know the electrostatic force is equal to K q1 q2 divided by r square. Let write it Fe and it Fg. As we put it in ratio Fe divided by Fg, हमें वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी, के ई स्क्वायर डिवाइड्स बाय जी एम ई एम पी। ओके, एम ई क्या है, यहाँ पे ई है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज की बेसिक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज निकल के आता है। 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल होता है भाई, किसके इक्वल होता है? सो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी क्या है, मास ऑफ proton. From physical constant we will get the value of k. K is 9 into 10 raised to power 9. G, what is the value of G? What is the value of G? G is 7 multiply 10 raised to power minus 11. Okay, similarly from the physical constant table we get the mass of electron, mass of proton, and the charge on an electron, okay, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. As we put these all value, we get a numerical value which is 2.3 into 10 raised to power 39. Okay, 10 raised to power 39, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स। और इसने पहला पूछा था डायमेंशनलेस क्यों है, तो भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लेंगे और के की डायमेंशन निकाल लेंगे। मास की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, किलोग्राम। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है भाई, क्या होती है, कूलम्ब्स। ओके, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन्स। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर्स। सो एज वी पुट ऑल दिस वैल्यूज and the value of constant k and constant g, we will get that m0 l0 t0, okay, in a square bracket. This means it has hidden the value of mass, length and time, so it is a dimensionless quantity, it is a dimensionless quantity. Okay, so after this there is another question number 1.4, okay, which says that explain क्या कहता है ये, explain the meaning of statement। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट का मीनिंग समझाना है। कौन सी स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो उसके बाद में क्या पूछा है, व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल। तो हम इसके क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए माइक्रोस्कोपिक क्या है और मैक्रोस्कोपिक क्या है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, ओके, वो होता है मैक्रोस्कोपी में लेते हैं। और जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, नेकेड आई से नहीं देख पाते, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। ये हमने चार्ज की प्रॉपर्टी का सेकंड ही टॉपिक है आपकी 12th की बुक में, एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ है कि चार्ज इज कंजर्व, देन चार्ज इज क्वांटाइज, आफ्टर दिस कंजर्व देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज। तो क्वांटाइज में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ये होता क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ई। होप आप सभी ने पढ़ा हो कि ये इसकी क्वांटाइजेशन की वैल्यू होती है एन ई। ओके, तो ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। चार्ज कैसे नहीं ट्रांसफर होते, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/4, 1/6, 1/9, ऐसे कभी भी ट्रांसफर नहीं होते।
they are transferred in an integral value. For example, 1 electron, 2 electrons, 6 electrons. Okay, so hence a body possesses total only in integral multiple of electrical charge. So अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज. क्वांटाइज क्यों है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स में. ओके, देन दे आर नॉट इन फ्रैक्शंस. ओके, आफ्टर दिस द सेकंड स्टेटमेंट ये क्या पूछ रही है, ये पूछ रही है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसको कंटिन्यू क्यों ले लेते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज क्यों नहीं लेते. तो इसमें ये कहता है कि इन मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल द चार्ज यूज्ड एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रेवल करता है रेदर देन इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, हेंस द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन इज नो यूज इन मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका कोई यूज नहीं है. ओके, देयरफॉर इट इग्नोर द कंसीडर इलेक्ट्रिक चार्ज कंटीन्यूअस. इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5. 1.5 क्या कहते हैं कि व्हाट अ ग्लास रॉड इज रब्ड. जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों चार्ज हो जाते हैं. ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद अ मेनी पेयर ऑफ द बॉडी. ऐसी बहुत सी बॉडीज होती हैं जिनके साथ ये सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हमें ये बताना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैसे सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, तो इसके आंसर में ये कहेंगे जैसे हम रब करते हैं तो कुछ चार्ज उसमें ट्रांसफर हुआ है तो कुछ चार्ज उसमें भी ट्रांसफर हो रहा होगा. ओके, तो सीधी सी बात है, अगर एक में पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो दूसरे में क्या होगा. ओके, दूसरे में भी चार्ज ट्रांसफर होगा. रबिंग प्रोड्यूस चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट नेचर. और यहाँ पे वही बात आ गई, इक्वल अमाउंट होगी बट नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा. ऑफ टू बॉडीज बिकॉज चार्ज क्रिएटेड इन अ पेयर्स. चार्ज कैसे क्रिएट होता है, पेयर्स में. दिस फिनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन यानी कि रबिंग. द नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम ऑफ टू रबिंग बॉडीज इज 0. तो टोटल रबिंग के बाद में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है आफ्टर दिस इट विल बिकम 0. दिस इज बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज एनिहिलेट ईच अदर. यानी कि इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज होगा. अगर एक में पॉजिटिव दिख रहा है, जैसे सिल्क से जब ग्लास रोड को रब किया जाता है तो क्या मिलता है, हमें जो रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलता है, लेकिन तो हमें सिल्क की क्लॉथ पे कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा. ओके, बस यही रीजन है इसका, यही रीजन है इसका. इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 कॉर्नर्स हैं. ठीक है, 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपको चार्ज दे दिया गया है. 2 में पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है. पॉजिटिव क्या है 2 माइक्रो और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है 5 माइक्रोकूलम्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एवरी क्वेश्चन वी कन्वर्ट देम इन कूलम्स. इफ इट इज गिवन माइक्रो, मिली, एनी वैल्यू वी जस्ट कन्वर्ट इन कूलम्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूलम्स में बदलेंगे इसको. ओके, कूलम्स में बदलने के बाद में जनरल हमारे पास फॉर्मूला है कि कौन सा चार्ज किस पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, उससे हम उसका फोर्स कैलकुलेट कर देंगे. इसमें पूछा भी क्या है, फोर्स पूछा गया है. और स्केयर की साइड्स बताइए 10 सेंटीमीटर्स. ओके, एट द सेंटर ऑफ स्केयर. हमने इसके ऊपर बताना है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा. तो इसके ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्मूला है, Q1 Q2 डिवाइड्स बाय R स्क्वायर. ओके, Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल निकाल देंगे. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो, जो आपको दिल करे उस फॉर्मूले से निकाल लो. जैसे ही आप डायगोनल से निकालोगे दे आर 10√2. ओके, दिस इज द डायगोनल बट डिस्टेंस बिटवीन द O और B, O और A के बीच की दूरी और D के बीच की दूरी और C के बीच की दूरी इक्वल है, बट ये हाफ है कंप्लीट डायगोनल के. कंप्लीट डायगोनल के हाफ है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज क्या आ जाएगा 5√2. ओके, सेंटर से जो चारों चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5√2. अ चार्ज अमाउंट इज 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 1 पॉइंट. कितने चार्ज रखा गया है 1 माइक्रोकूलम. कहां पे, सेंटर पे. फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर A एंड
O is center is equal magnitude but opposite in direction the relative repulsion between charge। तो सीधी सी बात है फोर्स तो इक्वल लगेगा, जब क्या है प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, हेंस दे विल बी कैंसल ईच अदर। अगर 5 माइक्रोकूलम इसको देखो, इसका ऐसे बनेगा ग्राफ, ओके यहाँ पे होगा -5, यहाँ पे भी -5। अब देखो जिससे ये +1 माइक्रोकूलम से जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उसी से तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्यों माइनस क्या अट्रैक्ट करता है प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो जब माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बात है, +2 और +2 माइक्रोकूलम्स। अब ये देखो ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल फोर्स कितना होगा एक चार्ज के ऊपर 0। तो टोटल फोर्स कितना होगा एक चार्ज के ऊपर 0। ओके, आफ्टर दिस देयर इज अनदर क्वेश्चन 1.7। 1.7 क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंटीन्यूअस कर्व होती हैं भाई। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, इनमें ब्रेक नहीं होता, ब्रेक नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता, व्हाई नॉट, क्यों नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर दिस एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। और दूसरा क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस continuous curve because charge experience continuous force when traced in electrostatic field। सीधी सी बात है, एक चार्ज है उसमें से जब फोर्स निकल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दूसरे चार्ज फील कर रहे हैं वो क्या होता है कंटिन्यूस होता है। ओके, क्या होता है कंटिन्यूस होता है, इसे वो कभी भी जंप नहीं करते हैं, इसलिए क्या रहती है कभी ब्रेक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उससे में से निकल के आ रही है वो क्या होती हैं कंटिन्यूस होती हैं, इसलिए। ओके, सेकंड क्या था कि नेवर क्रॉस ईच अदर। नेवर क्रॉस ईच अदर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दो डायरेक्शन शो करेगी, इधर भी स्ट्रांग है इधर भी स्ट्रांग है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सेम एज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ गए मैग्नेटिक लाइन किस तरह है, ये भी क्या नहीं करेंगे क्रॉस नहीं करेंगे कभी एक दूसरे को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8। 1.8 क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू चार्ज हैं Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम्स एंड Q इज इक्वल टू -3 कूलम्स। अब यहां से आप एक चीज देखो, +3 और -3, एक टॉपिक आपने पढ़ा है, क्या नाम है टॉपिक का, डाइपोल। डाइपोल, इसके अंदर क्या होता था, दो पोल होते हैं इक्वल अमाउंट बट अपोजिट इन साइन। आपसे यहां से यही से पता लग रहा है कि ये डाइपोल का क्वेश्चन है, डाइपोल का क्वेश्चन है। कहां से पता लग रहा है कि दो चार्ज दे रखे इक्वल बट इन अपोजिट और उसमें डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां पे रखे गए हैं, वैक्यूम में। उसके बाद में कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मिड पॉइंट P। अब भाई साहब एक मिड पॉइंट ले लो इन दोनों चार्ज के बीच में, ये मैंने ड्राई की हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में एक मिड पॉइंट ले लिया O, ठीक है, एक मिड पॉइंट ले लेंगे O जो लाइनिंग जॉइनिंग के बीच में है। इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज द मैग्नीट्यूड, नेगेटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 into 10⁻⁹ कूलम्स है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन रिप्रेजेंट की गई है, मिड पॉइंट में O है, डिस्टेंस बिटवीन 20 सेंटीमीटर है, तो हर एक चार्ज से कितना डिस्टेंस है, अगर 20 सेंटीमीटर टोटल है तो सेंटर में है तो 10 सेंटीमीटर इधर से है 10 सेंटीमीटर इधर से है। ओके, सो इसके बाद में हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है भाई, Q/4πε0 into r², यही होती है। r हमें दिया है 10 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया, ओके 20 दिया था, 20 से हाफ करना है 10 आ जाएगा। उसके बाद में चार्ज की वैल्यू दी रखी है, जितनी पॉजिटिव की वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव की वैल्यू है। तो अगर हम एक निकाल दें तो दूसरे के आगे सिर्फ नेगेटिव साइन लगाने के बाद में हमें टोटल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। वो किससे मिलेगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन और कूलम्ब फोर्सेस। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि टोटल जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा E1 + E2 + E3 होगा।
या अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज दो फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो क्या होगा, टोटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, समझ गए भाई। यहाँ से अगर पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव की वैल्यू क्या आई है, उसको जब हम 2 से एडअप कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग OB। OB पे इतना होगा, ठीक है। Therefore the electric field at midpoint O is 5.4 on OB at the test charge 1.5 into 10 raised to power minus 9 कूलम is placed in midpoint O। ठीक है, तो क्या हो बीच में क्या है, क्या हो की वैल्यू क्या है 1.5 into 10 raised to power minus 9 कूलम। So from the equations you know that electric field is equal to force upon charge। अगर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला है, क्या है 5.4 into 10 raised to power 6, उससे मल्टीप्लाई किसको कर देंगे, चार्ज से। चार्ज कितना मैग्नीट्यूड दिया 1.5 into 10 raised to power minus 9। ओके, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, we will get total force। ओके, since the force is direction along OA, this is because negative test charge is repelled by the charge placed at point B but attract towards A। तो भाई नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से फोर्स होगा वो एक तरफ जाएगा, किसकी तरफ, OA के तरफ जाएगा, और फोर्स कितना होगा 8.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 न्यूटन्स। ओके, सो इसके बाद में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिस्टम में दो चार्ज हैं, क्या हुए और क्या हुई। यहाँ पे फिर से देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि किसका क्वेश्चन है, डायपोल का। इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का। ओके, डिस्टेंस दे रखा है भाई -15। एक पॉइंट ले लेंगे O सेंटर में, इधर +15 इधर -15 है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पूछा, चार्ज पूछा है, टोटल चार्ज। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, क्या हुए क्या भी दे रखा है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सम ऑफ चार्ज। सम ऑफ चार्ज क्या है, प्लस में इक्वल वैल्यू माइनस में इक्वल वैल्यू, दोनों को जब एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ओके, टोटल चार्ज तो आ जाएगा 0, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 15 माइनस में और 15 प्लस में, 15 एंड 15 इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस। ओके, 30 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस, व्हेन वी कन्वर्ट इन मीटर इट विल बिकम 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगा, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 मीटर्स। ओके, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ भाई मेरे को, क्या हो इनटू 2a, और आइदर वी कैन कॉल इट d। ओके, वी कैन कॉल इट क्या हो इनटू d। ओके, चार्ज आपके पास है, d डिस्टेंस अभी हमने निकाल दिया, क्या है 0.3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -7 कूलम्स। ओके, then you will get your answer 7.5 into 10 raised to power -8 coulomb along the positive z axis, along the positive z axis। सिमिलरली जब हम नेगेटिव z एक्सिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, आफ्टर दिस देयर इज अ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डायपोल में विद डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। p क्या दे रखा है भाई 4 into 10 raised to power -9 coulombs मीटर, ठीक है। अलाइन विद द 30, देन साइन थीटा दे रखा है हमें कितना 30 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड E दे रखा है भाई, E की वैल्यू दे रखी है क्या है 5 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना। अगर टॉर्क का आपको जब वैल्यू याद हो तो क्या हो क्रॉस ई होती है, क्या हुआ आपके पास है ई आपके पास है, क्रॉस की जगह क्या जाएगा साइन थीटा। साइन की कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2। सो यू विल गेट 4 into 10 raised to power 9 multiply 5 into 10 raised to power
4 इंटू 1/2। इसको जब सोल्व आउट करेंगे, ठीक है, जब सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11। ये कहते हैं एक पॉलीथीन रब विद अ वूल, एक पॉलीथीन को किसके साथ रब किया जाता है, वूल यानी कि ऊनी कपड़े के साथ। नेगेटिव चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁷ -7 कूलम है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास इन अ वूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें ये बताना है कि क्या मास भी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ओके, व्हेन पॉलीथीन इज रब्ड अगेंस्ट वूल, पॉलीथीन किसके अगेंस्ट रब किया जाता है, वूल के अगेंस्ट रब किया जाता है। नंबर ऑफ भाई तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी चार्ज ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा, नेगेटिव। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, क्या इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁷ कूलम। ये आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो नंबर ऑफ क्या इज इक्वल टू Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इक्वेशन आ चुकी है आपकी। ठीक है, तो इसमें से n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट कर दोगे क्या बाई e करके, क्या हो कितना है, -3 × 10⁻⁻7। e क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, व्हेन वी solve it we will get the value 1.87 × 10⁻12। ओके, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद में क्या क्वेश्चन था, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, इसका आंसर है यस। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो हमारे पास तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास जितना ट्रांसफर हुआ वो अपने पास निकल आएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.706 × 10⁻18 किलोग्राम। ओके, आफ्टर दिस देन देयर इज 12th न्यूमेरिकल। 12th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपके पास दो इंसुलेटेड चार्ज हैं, कॉपर स्फीयर के हैं। ठीक है, कॉपर स्फीयर ए और बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ए और बी, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, हर एक पे चार्ज दे रखा है भाई, कितना है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्स। ओके, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर कंप्लीट नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो भाई ये चीज है, ये तो नेग्लिजिबल यानी कि टोटल डिस्टेंस दे रही है इसने। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल एंड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो भाई चार्ज डबल कर दें और डिस्टेंस हाफ कर दें तो भाई क्या रिपल्सन होगा, ये फाइंड आउट। पहले तो डिस्टेंस का फोर्स निकालना। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर। तो चार्ज तो दे ही रखा है, कितना है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, फोर्स निकाल लोगे भाई, फोर्स किस फॉर्मूले से निकालेंगे, K Q1 Q2 डिवाइड्स बाय r²। K की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ After this you know the value of Q1 and Q2 which is equal to 6.5 × 10⁻⁷². Okay, then the distance is 0.5². When you solve this numerical equation you will get 1.52 × 10⁻² न्यूटन। तो भाई इतना फोर्स ये फील करेगा, कौन फील करेगा, एक दूसरे से कॉपर स्फीयर जो ए और बी है जो एक डिस्टेंस पे है, वो एक कितने डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, वो इतना फोर्स फील करेंगे। ओके, आफ्टर द डबलिंग द चार्ज को जैसे ही डबल कर देंगे तो सीधी बात है डिस्टेंस कम कर दिया तो 0.5 है, इसको डिवाइड कर दो ये हो जाएगा 0.25। चार्ज को डबल किया है तो इसको डबल करोगे तो 6.5 × 10⁻⁷ × 2 इट विल बिकम
चार्ज बन जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। डिस्टेंस ये है आपके पास, दोबारा से इक्वेशन में पुट करना है और आपका फोर्स आ जाएगा विच विल बी 0.243। ओके, इतना फर्क आ जाएगा फोर्स में, पहले ये फोर्स था बाद में ये फोर्स है। ठीक है, आगे अभी समझ, करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लेना है, उसमें चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू डाल देनी है। ओके, आफ्टर दिस 13 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, दो फिर से सपोज करने हैं, किसे, कॉपर के, जिनके चार्ज भी दे रखा था डिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक है, ए थर्ड स्फीयर इज सेम साइज बट अनचार्ज ब्रॉट टू कंडक्ट इन द फर्स्ट, भाई एक बिना चार्ज का आ गया। ओके, उसको क्या कर दिया, उसके कांटेक्ट में रख दिया। फॉर एग्जांपल ये अनचार्ज है, ये चार्ज के पास आ गया, उसके बाद में क्या होगा भाई, देन ब्रॉट टू द कांटेक्ट इन सेकंड, पहले तो एक के पास गया फिर दूसरे के पास ले गए। ओके, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के अंदर नया रिपल्शन क्या होगा। अगर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद हो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, उसमें दिया एग्जांपल्स में, उसमें दिया गया था कि जैसे ही हम किसी को अनचार्ज को किस चार्ज के पास लेके जाते हैं, उसकी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज हाफ हो जाता है। ओके, जैसे ही चार्ज कम हुआ तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स उतना ही रहेगा। ओके, डिस्टेंस के साथ। ओके, तो इसमें डिस्टेंस पहले दे रखा है r इज इक्वल 0.5, चार्ज इज 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम था। When a charge touch by uncharged body, charge is transferred क्या हो by 2 अमाउंट चार्ज रह जाएगा A के पास और B के पास भी ये रहेगा। ठीक है, तो भाई A और C के पास क्या हो by 2 चार्ज रहा है। ओके, देन क्या हो by 2 प्लस क्या हो by 2 इज इक्वल टू 3 क्या हो by 4, ईच स्फीयर विल ईच हाफ, हर स्फीयर के पास हर हाफ होगा, हेंस द चार्ज बाय टोटल चार्ज क्या बच गया 3 क्या हो by 4। फोर्स और रिपल्शन बिटवीन द टू स्फीयर इज इक्वल टू, एक का चार्ज क्या हुआ 2, दूसरे का क्या 3 क्या हुआ 2। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 3 क्या स्क्वायर डिवाइड्स बाय क्या बाय 2 था, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, डिवाइड्स बाय आर स्क्वायर। ओके, देन इट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है 0.5। ओके, देन द चार्ज दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो आएगी 5.073 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है, आई होप यू विल गॉट सॉल्व इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 14th क्वेश्चन। क्या कहता है 14th क्वेश्चन, कहता है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ट्रैक दिखा रखा है, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये द साइन द 3 चार्ज, तीनों चार्ज को एक साइन दो, विच ऑफ द पार्टिकल इज हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो, सबसे मास रेशियो में सबसे ज्यादा कौन होगा। सीधी सी बात है भाई, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाला क्या है पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा मैंने कहा, तो ये कैसा चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, और ये भी कैसा होगा नेगेटिव, बट ये कैसा होगा पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे इसका चार्ज तो कंफर्म हो गया अभी सभी को। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल 3 मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट रिपेल अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, हेंस द 3 इज पॉजिटिवली चार्ज। द चार्ज रेशियो, मास रेशियो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट अमाउंट। तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है भाई बताओ, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है 3 की है। अगर आप यहाँ से सीधी लाइन ले लो, ये तो अभी तक क्रॉस नहीं करके हैं और ये प्लेट को क्रॉस तक कर चुका है, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी है 3 की, तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे, मास किसका होगा 3 का। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ ओके, किस डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी दे रखी है न्यूटन पर कूलम्ब्स। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। एक तो ये है, दूसरा गॉस लॉ से है हमारे पास। ठीक है, तो भाई हमें देखना है इसमें कौन सा लगेगा।
थ्रो द स्केयर ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्केयर है भाई 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड, स्केयर की एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो कंप्लीट साइड्स क्या होगी भाई, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4 into a, it will become 40, okay, it will become 40, but when we are dealing with, जब भी हम फ्लक्स के साथ डील करते हैं हम सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया के साथ तो भाई एक साइड क्या है 0.1 मीटर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L into B, 0.1 into 0.1, what will it become 0.001, okay, it will become 0.01 meter square, okay, we had now surface area, we had electric field, दोनों चीजें आ गई हैं, cos theta, so what in the side question there is a normal plate 60 degree angle, एंगल कितना दे दिया 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ओके, यू विल गेट आंसर ये 30 न्यूटन मीटर पर सेकंड, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है 90 to 60, हाँ ओके 1/2, you will get your answer 30 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, फ्लक्स विल बिकम 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, आपका फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना है कितना 3 into 10 raised to power minus 10 raised to power 3, ओके, और ए क्या है 0.01 into cos 60 1/2, तो भाई ये आएगा 15 into 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, -3 है 1 2 जाके क्रॉस अप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ओके। अब 16 क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, फ्लक्स बताना है इसमें भी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पीछे वाले क्वेश्चन का 15th क्वेश्चन का, थ्रू ए क्यूब साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट, इसके फेस किसके हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या बताना है फ्लक्स बताना है, ऑल फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सभी फेस क्या है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग आउट ऑफ द क्यूब एज द नेट फ्लक्स इज 0, फॉर एग्जांपल एक क्यूब ले लेंगे, ठीक है, ये क्यूब है पैरेलल है तो ये x हो गया, ये y हो गया और एक थर्ड होगा ये हो गया z, और पैरेलल है तो भाई जितनी लाइन यहाँ से अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आएगी, जितनी अंदर जा रही है उतनी तो बाहर आ रही है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया, ओके। केयरफुल मेजरमेंट करनी है किसकी, इनसाइड तो नहीं लिखा गया इसमें, तो केयरफुल क्या करनी है मेजरमेंट करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सरफेस है ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स की अमाउंट दे दी भाई इस बार, फ्लक्स की अमाउंट दे दी, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, क्या फाइंड आउट करना है चार्ज फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड करना है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या है 0 है, कुड यू conclude that there is no charge in a box inside, why not, अगर आप कहते हो कि नेट चार्ज 0 है बॉक्स के अंदर, क्यों है, और नहीं अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ओके, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, phi is equal to 8 multiply 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, ठीक है। फॉर बॉडी कंटेनिंग चार्ज है तो भाई phi is equal to क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से आया है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, phi की वैल्यू दे रखी है, चार्ज निकल जाएगा, चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.07 माइक्रो कूलम्ब्स, ओके 0.07 माइक्रो कूलम्ब्स, ठीक है। तो नेट चार्ज इन द बॉक्स 0 नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, नेट चार्ज इन द बॉक्स आउट थ्रू द बॉक्स डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज कंटेनिंग इन द बॉक्स, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा कि बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, ओके, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, इफ द नेट फ्लक्स इज 0, अगर नेट फ्लक्स 0 है then it can be inferred that net charge inside the box is 0, inside the box net charge क्या हो 0 हो, तभी बाहर क्या होगा 0 होगा, बॉडी में भी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बॉडी में कब ऐसा होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में रखा जाए, ओके।
After this we are going to question number 18. Where is 17? Okay, 17 we have solved with the flux. It's a 18. Okay, 18 क्वेश्चन में क्या है, एक शीट दे रखी है, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या रखा गया है, चार्ज रखा गया है, उसके ऊपर क्या बताना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही शीट है तो आपके पास गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस के अंदर से जब भी कोई फ्लक्स निकलता है उसकी फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं भाई 6, देन इट विल बिकम टोटल फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइड्स बाय 6। ओके 6 से हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/6 इंटू क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, चार्ज आपके पास दे रखा है व्हिच इज प्लस 10 माइक्रोकूलम्स, 10 माइक्रोकूलम्स चार्ज है, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई कितना है प्लस 10 माइक्रो। मैंने कहा था माइक्रो को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम इनटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो इसके बाद में 6 तो है ही हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻12। जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। ओके, 18th क्वेश्चन हो चुका है आपका। 19th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पॉइंट चार्ज दे रखा है, सेंटर ऑफ क्यूब, गॉसियन सरफेस दे रखा है 9.9 सेंटीमीटर ऑन द एज। ठीक है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है भाई। नेट फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, क्या करेंगे बताओ भाई, चार्ज डिवाइड्स बाय एप्सिलॉन नॉट, यू विल बिकम गेट योर नेट चार्ज ऑन द फ्लक्स। ओके, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ओके भाई, लेकिन इससे पहले सबसे पहले इसको जो माइक्रो है ना इसको कन्वर्ट कर देना कूलम्स में, माइक्रो कूलम्स में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे मीटर में। तो आपके पास ऐसा यूनिट के साथ आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। ओके, देन देयर इज अ 20th क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट चार्ज क्या है इस फ्लक्स के अंदर 1 - 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कहां से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से निकल रहा है, जिसमें क्या देखिए 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। ओके, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की क्या देखिए रेडियस। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इनको मीटर में बदल दो भाई, सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे मीटर्स में। ओके, मीटर में बदल देंगे। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर रेडियस 10 है उसकी जगह 20 कर दी तो 0.2 मीटर हो गई। ओके, उसमें कितना फ्लक्स पास करेगा सरफेस से, सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, फ्लक्स दे रखा है, रेडियस है, तो वही फ्लक्स निकल जाएगा, एक बार निकल जाएगा ना, वो आ जाएगा -8854 n कूलम्स, n यानी कि नैनो, नैनो रेजिस्टेंस टू 10⁻⁹ ओके, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज ये हो जाएगी भाई। ओके, ठीक है, तो 21st क्वेश्चन आ गया, 21वां क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है कि रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये कभी मत भूलना, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं हमें सभी में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमें सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है मीटर में। जहां सेंटीमीटर देख गया उसको बदल दो, किसमें मीटर में बदल दो। ओके, इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर क्या दे रखा है भाई, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है भाई, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज, भाई नेट चार्ज बताना है। E इज इक्वल टू क्या भाई 4π/d², इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू भी आ जाएगी भाई। E क्या होता है, क्या हो भाई 4πε0r² होता है या d², जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ से अगर हमें इसको चार्ज निकालना है तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻ stands for nano, you will write it n and
यू गेट योर आंसर 6.67 नैनो क्या कूलम्स। ओके, चार्ज मिल गया आपको। अब आ गया 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले मीटर में दे रखा है, उसने पता है कि बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टिंग स्फीयर है, 2.5 डायमीटर है, इसकी क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। चार्ज दे रखा माइक्रो कूलम्स मीटर स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो माइक्रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, कूलम्स में। ओके, तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज बताना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव थ्रू स्फीयर, तो फ्लक्स भी बताना है। ठीक है, तो चार्ज तो अब निकाल लोगे भाई, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ओ सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, यानी कि सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्या हुआ है एस। ओके, तो भाई चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसमें, ठीक है, रेडियस निकाले, रेडियस दे रखी है, तो भाई आप डायमीटर दे रखा है 2.4, रेडियस निकल जाएगी 1.2। ओके, इसके बाद में क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे हम, आर की वैल्यू, तो 4 पाई आर स्क्वायर में जब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 80। ओके, इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो किसमें हमने बदल दिया, डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ क्या होगी, 4, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 1.2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन बचा है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम्स, ये आपकी आंसर आ गया। इसको हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, चार्ज आपके पास निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकाला है हमने बताओगे तो ही, यहाँ से निकाला है चार्ज, चार्ज निकाल दिया भाई, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है फ्लक्स होता है, निकाल लोगे क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले, चलो फिर भी मैं बता ही देता हूँ आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻12। ओके, और क्या हुआ अभी हमें निकाला है 1.447 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो जब इन दोनों को रेशियो में लिख देंगे या फ्रैक्शन में रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है भाई, लाइन चार्ज आ गया यानी कि लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो भाई चार्ज बाय लेंथ लिख देंगे। ओके, ये आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये लीनियर था, ये सरफेस था और ये वॉल्यूम था, ठीक है, ये क्या था वॉल्यूम। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस 9 पर कूलम्स, ओके, एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है भाई। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकाल देंगे लैम्डा इज इक्वल, जब इसको क्यू की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो क्यू की वैल्यू जब इसमें से निकालेंगे, सॉरी हाँ, तो भाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। ओके, तो हमारे पास डेल्टा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा क्यू डिवाइड्स बाय क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइड्स बाय आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ई, यहाँ से जो एल है वो एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो है 0.02 मीटर, ई की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्स। ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, देन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये सब वैल्यू पुट कर देना बस, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई माइक्रो है तो -6 आ जाएगा भाई,
ठीक है। तो नेक्स्ट इससे क्या आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। ठीक है, दो मेटल शीट्स हैं, ठीक है, बीच बीच में एरिया है 1, 2 और 3, ठीक है, थिन प्लेट्स हैं। ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स आर चार्ज डेंसिटी इन अपोजिट साइन, द मैग्नीट्यूड इज अपोजिट साइन है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, व्हाट इज ई को पूछा है, इन द रीजन ऑफ आउटर फर्स्ट। तो 3 रीजन है, इसमें पहले पूछा है, उसके बाद में इसमें पूछा है, इसके बाद में इसमें पूछा है। ओके ठीक है भाई, सबसे पहले तो पहले में देंगे, पहले चार्ज में ए सरफेस है, सरफेस है तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ए और बी, एक में तो जितनी प्लस में होगी दूसरे में क्या होगी माइनस, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन्होंने बताया है कि अपोजिट चार्ज में है। ओके, एक में जितनी प्लस होगी दूसरे में इतनी क्या होगी माइनस होगी। तो यहाँ से दो तो चार्ज डेंसिटी आ गई, बिटवीन क्या होगी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स नॉट से वैल्यू निकाल देंगे, बीच में आएगी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, और सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻10। ओके, सो बच्चों एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस, तो सीधी सी बात है आपके जितने क्वेश्चन दे रखे थे उतने तो मैं करवा चुका हूँ जो नई एनसीईआरटी में है, जो अभी एनसीईआरटी पब्लिश हुई है उसके अंदर जितने क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। इसके बाद में एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।